Hello students, welcome to the next video of the 12th business studies. In the last video we have completed a second chapter. Last video में हमने fuels के 14 principles देखे थे and that is the last topic of that chapter. We do not have to study the similarities and dissimilarities between the fuel and Taylor. That is not an important question. We will see it later words. But all the major topics and aspects of that chapter, second chapter, we have completed. That is the principle of management. There are two basic main questions in that: the principles of Henry Fayol and the principles of F.W. Taylor. ठीक है, and we have also seen the objectors, merits, demerits of the principles of the organization or the features of the principles of management. Now we are starting today with the third chapter of the business studies in our course, that is business environment. Chapter number 3, BS 12th business environment. Now we will see what is business environment. नाम से ही बहुत क्लियर है, द एनवायरमेंट फॉर द बिजनेस टू ग्रो और टू सेट अप और टू रन. द एनवायरमेंट रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस टू ग्रो एट सम अदर लेवल इज द बिजनेस एनवायरमेंट. नाउ देयर कैन बी मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बिजनेस एनवायरमेंट. इट कैन बी customers, it can be producers, it can be suppliers, it can be atmosphere, it can be weather changes, it can be demand, it can be supply, and number of numerous factors that affects the business environment. मतलब business environment क्या कि बाहर के जितने भी external factors है that can affect your business is the business environment, and that's why it is more and more important to know about the environment of your business, where your business is running. Try to analyze the complete environment outside your business. ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ध्यान रखने के लिए, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट को बिना पहचाने वी कैन नॉट रन द बिजनेस और वी कैन नॉट ग्रो द बिजनेस अप. आप एक लेवल तक बिजनेस को चला सकते हो, लेकिन वी कैन नॉट ग्रो इट एक्सपोनेंशियली विदाउट नोइंग द बिजनेस एनवायरनमेंट. So in this chapter we will study complete about the business environment, that what are the features of business environment, why it is important, what are the factors that is to be learned for the importance of business environment, and many more. Starting off first with the features. Definition मैंने बताई कि what is business environment और definition clear होगी with the features. We are going to study the features of the business environment. See, first it is the totality of external forces. Now what is totality of external forces? External forces मैंने बताया कि consumers हो सकते हैं, डिमांड हो सकती है, फैशन हो सकती है, टेक्निकल अपग्रेडेशन हो सकती है. सो नंबर ऑफ फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स होंगे दैट कैन अफेक्ट्स द बिजनेस externally, not the internal factors. I am not talking about the workers, I am not talking about the machines of that, I am not talking about the files of the business. External environment, external factors that can affect the business is known as the external factors. Now the sum total of all the external forces, जितने भी external forces है, सभी को अगर मिला लिया जाए, सभी को टोटल कर लिया जाए, then it becomes a business environment. ठीक है, the total of the sum of all the external forces required that affects the business is known as business environment. Clear? Now second point, specific and general forces. Now business environment को affect करने वाले दो forces होते हैं, one is specific and other is general. Now specific means particular individual that affects the business. हमारे suppliers कैसे हैं, हमारे कंज्यूमर कैसे हैं, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, हमारा प्रोडक्ट कहाँ जाता है, किसके थ्रू जाता है. स्पेसिफिक फोर्सेस कि कंज्यूमर की जो डिमांड होगी वही सप्लाई करना है हमको. ठीक है, तो these are the specific forces. And what are general forces? Now general forces की हमारे बाहर के environment, general environment के कारण हमारा business कैसे इफेक्ट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम के हिसाब से हमको ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा. अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी के हिसाब से हमको ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा. अगर कोई टेक्नोलॉजिकल अपडेट आता है तो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज करके हमको प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा. That is specific and general forces. Specific forces are specified to a certain individual and general forces are specified to some general extent in environment. ठीक है, तो these are the specific and general forces that affects the business environment. Now next, third,
इंटररिलेटेडनेस। नाउ व्हाट इज इंटररिलेटेडनेस? अब इंटररिलेटेड का मतलब क्या होता है कि सारे फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट के आपस में इंटररिलेटेड रहते हैं। कि बारिश आई तो छाते की जरूरत या रेनकोट की जरूरत पड़ेगी, गर्मी आई तो आइसक्रीम का सेल बढ़ेगा, या फिर शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स का सेल बढ़ेगा। सो दिस आर इंटररिलेटेड। What the factors are interrelated, that means the general forces, या फिर I can say the general forces and the specific force are interrelated in a business environment. एक के चेंज होने के साथ में दूसरा चेंज होता है, dependency on one another. This is the interrelatedness in business environment. Now डायनामिक नेचर। नाउ अभी देखो यहाँ पर हमने स्पेसिफिक फोर्सेस पढ़ा, इंटररिलेटेड पढ़ा, तो अब इंटररिलेटेडनेस इज क्लोज टू डायनामिक नेचर। हाउ? कि अगर हम बोल रहे हैं कि चीजों की आपस में इंटररिलेटेडनेस है, कि अगर यहाँ पर कोई चेंज आता है तो उस कारण से हमको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी शुड बी डायनामिक इन नेचर, वी शुड बी रेडी टू चेंज। अगर हम लोग फैशन और ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमारे फैशन और ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट्स को चेंज नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। अगर हमने फैशन को देख के ट्रेंड चेंज देखकर हमने प्रोडक्ट्स में बाइफर्केशन नहीं करे या प्रोडक्ट्स में अपग्रेडेशन नहीं करा तो हमसे सामान लेगा कौन? हमको तो यही बोला जाएगा ना कि जो फैशन चल रहा है वो सामान बेचो, अगर नहीं बचेंगे तो सामान हमसे कोई नहीं लेगा। दैट मीन्स वी शुड बी डायनामिक इन नेचर, वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स, according to the technological change, according to the fashion and trend change. We should be dynamic so that we can change it instantaneously. Clear? Uncertainty. बिजनेस एनवायरनमेंट कब चेंज होता है, फैशन कब चेंज हो जाए, ट्रेंड कब चेंज हो जाए, कब हमको हमारे प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चेंज करना पड़े, कब टेक्नोलॉजिकल अपडेट चेंज करना पड़े, इसका कोई सर्टेन टाइम लिमिट नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स 3 महीने तक चल सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स 1 वीक में ही हमको चेंज करने पड़ेंगे। कोई फैशन लॉन्ग टाइम तक रन कर सकता है, कोई फैशन विद इन 2 days इट कैन डिमोलिश। So there is a uncertainty in business environment. So we should be very careful and curious to see that the business environment, how does the business environment change and when does business environment change, कब चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, प्रॉपर नजर रखनी चाहिए। अगर चेंज हो गया और हमने अपने आप को चेंज नहीं करा then we are lagging down and lagging behind. So there is a uncertainty in business environment. कभी भी चेंज हो सकता है, कोई टाइम फिक्स लिमिट नहीं है। ठीक। Now complexity and relativity. See, हम लोगों ने देखा the business environment factors are interrelatedness, dynamic and uncertain. तो dynamic भी है, uncertain भी है, interrelatedness भी है. So it creates a complexity in business environment. We have to be ready to change. We have to be ready to relate the factors. We have to be ready for the uncertainty. So this all 3 factors causes uncertainty and complexity. Moreover, complexity in business environment. कि business environment बहुत complex हो जाता है. So we need a team of experts to analyze all these factors so that we can reduce some extent of complexity. ठीक है, हमारे पास एक ऐसी टीम होना चाहिए जो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सके। हर चीज का प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी जितना वो लॉस कर सकती है। तो दिस इज कॉम्प्लेक्सिटी। एंड नेक्स्ट इज relativity. Now what is relativity? The business environment factors are relative to each other. That means हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट की डिमांड है जरूरी नहीं कि बाहर किसी कंट्री में भी उसी प्रोडक्ट की डिमांड हो। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया इफ यू आर द लेडीज आर वेयरिंग साड़ी देन इट इज नॉट लाइक कि द डिमांड ऑफ साड़ी इज इक्वल इन फ्रांस। हमारे यहाँ डिमांड ज्यादा है साड़ी की लेकिन फ्रांस में डिमांड हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो रिलेटिव फैक्टर्स आर दैट द प्रोडक्ट्स रिलेटेड to some extent, the products related to the clothing are different to countries, are varying from country to country. So there is a relativity in the business environment. All the factors are related to each other. See, these were the features of the business environment. फिर से एक बार देखते हैं। Totality of external forces, specific and general forces, interrelatedness, dynamic nature, uncertainty, complexity and relativity. Just note down these factors and then we will start the importance of business environment.
क्लियर कि व्हाई द बिजनेस इंपॉर्टेंट, व्हाई द बिजनेस एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट, क्या क्या पॉइंट्स है जो हमको ध्यान रखने पड़ते हैं, जो हमको बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट पर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम मिस कर देंगे। तो हमको कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड होती है थ्रू द बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट टॉपिक। जस्ट नोट इट डाउन। Okay, now next is importance of business environment. Now we are going to see the one by one the factors that are important. First, the business environment enables firm to identify the opportunities and getting the first mover advantages. Now what is this? अगर हम business environment पर proper ध्यान देंगे तो we are going to know that the in our area what opportunities are generating. अब अपॉर्चुनिटीज क्या होता है कि जिस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में मेरा सेटअप है इंडस्ट्री का या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का या फिर मेरे बिजनेस प्लांट का, मुझे वहाँ का एरिया पता है कि उस एरिया में कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एरिया, what are the quality of products, what are the products the public are demanding. मुझे पब्लिक की डिमांड पता चलेगी, वहां पर किस चीज की कमी है जो होना चाहिए अच्छे से और नहीं हो पा रही है, मुझे उन चीजों का पता पड़ेगा। अब अगर मुझे उन चीजों का पता पड़ रहा है ना, दैट मीन्स आई एम गेटिंग अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज इन दैट एरिया। मतलब मुझे दिख रहा है कि मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि इफ आई एम सप्लाइंग, इफ आई एम एबल टू सप्लाई दैट पर्टिकुलर कमोडिटी और प्रोडक्ट, देन माय बिजनेस विल ग्रो मच फास्टर देन अदर्स। क्योंकि मैं वो चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ जिनकी उनको जरूरत है और वो उनको नहीं मिल पा रही है। सो माय बिजनेस विल ग्रो मच मोर फास्टर देन दी अदर्स। ठीक है, सो बिजनेस एनवायरनमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द डिमांड्स, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पब्लिक। मुझे उन्हीं से पता चलेगा कि क्या चीज की जरूरत है। तो जब मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा मेरी अपॉर्चुनिटीज, देन आई विल वर्क ऑन इट and I will get the first mover advantages. अब what is first mover advantages? मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो अब मुझसे पहले किसी ने ये सोचा नहीं कि यहाँ पर इस चीज की जरूरत है। So I am getting first mover advantage. I am the first to handle that opportunities and I am working on that. मैंने लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा और अब मैं फर्स्ट हूँ जो उनके लिए काम करने के लिए आगे आ रहा हूँ। तो लोग मुझसे ज्यादा क्लोज रहेंगे रेदर देन जो मेरे बाद में वो उस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। आई वाज द फर्स्ट टू नो अबाउट दैट प्रॉब्लम्स, अबाउट दैट रिक्वायरमेंट, अबाउट दैट डिमांड। सो आई विल गेट better benefits than other, I will get better response than other businessmen. So I am getting the first mover advantage. पहला कदम लेने का बेनिफिट मुझे मिलेगा क्योंकि सबसे पहले मैंने उनकी प्रॉब्लम्स को समझा था। ठीक है, so this was the first point. Now second point, helps the firm to identify threats and early warning signals. Now what is this? अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट में अवेयर हूँ, एंड इफ आई एम वेरी अवेयर टुवर्ड्स द बिजनेस एनवायरनमेंट दैट व्हाट्स गोइंग ऑन, what has to be done, what are the requirements, what are the demands, I can also easily know about the threats of my business कि in future क्या क्या threats आ सकते हैं, what are the threats coming out for my business। तो मुझे क्या बिजनेस एनवायरनमेंट में इफेक्टिव रहने से मुझे पहले से उन थ्रेट्स के बारे में वार्निंग सिग्नल्स मिल जाएंगे क्योंकि आई एम अवेयर अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट। एक अलग बिजनेसमैन आया है जो मेरे ही बिजनेस का सेम सेटअप कहीं और लॉन्च कर रहा है, दैट इज अ थ्रेट। तो मुझे उससे पहले ही पता चल गया ना कि सेटअप, अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड हूँ तो मुझे पहले ही दिख रहा है कि हाँ ही इज सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस। सो मेरे लिए ये अर्ली वार्निंग सिग्नल्स है कि आई हैव टू एक्सटेंड समहाउ, मुझे उससे कुछ बेटर करना है। आई हैव टू एंगेज सम ऑफर्स, I have to give some quality products, or I have to do something new that the people will get attracted to me, not to that businessman. Clear? So this is happens only because of business environment. अगर आप business environment में curious नहीं हो या फिर indulged नहीं हो and you are not known about the business environment, तो आपको threats का पता नहीं चलेगा for your business and you are not going to get the warning signals for your business setup. Clear? This was the second point. Third, helps in coping with rapid changes. हम लोगों ने देखा था कि these are the interrelatedness and specific and general forces एंड डायनामिक नेचर। तो वो किस कारण से होता था? बिजनेस एनवायरनमेंट
changes thoroughly and rapidly. कब बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, कब फैशन चेंज हो जाए, कब ट्रेंड चेंज हो जाए, वी आर अननोन अबाउट दैट. कभी भी कुछ भी चेंजेस आ सकता है, नया फैशन आ सकता है, नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, ठीक है. तो वी शुड बी नोन फॉर दैट बिजनेस एनवायरनमेंट. हम लोगों को वो सारे चेंजेस को एडॉप्ट करने के लिए रेडी होना चाहिए. हम लोगों ने इसीलिए बोला था बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर. पर हमको ये सब पता कैसे चलेगा कि चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ? हम रेडी तो थे चेंज करने के लिए, हम रेडी थे टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के लिए या नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए. बट जब तक हमको पता नहीं चलेगा, टिल द टाइम वी आर नोन अबाउट दैट चेंजेस, हाउ वी आर गोइंग टू चेंज. सो बिजनेस एनवायरनमेंट से जुड़े रहने का ये फायदा है, वी आर इजीली एबल टू कोप अप विद द रैपिड चेंजेस. जो भी चेंजेस आएगा वो हमको इजीली पता चल जाएगा. जब तक मैं मार्केट में जाऊंगा नहीं, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा. एंड व्हाट इज द मार्केट? मार्केट इज द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो बिजनेस एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व रहोगे, देन इट विल हेल्प यू to cope up with the rapid changes of the business or the industry. So business environment helps in coping with the rapid changes. Clear? Fourth point, helps in assisting in planning and policy formulation. Now business environment will help you. अब मुझे पता चल गया कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है मुझे, क्या मेरे लिए थ्रेट्स एंड वार्निंग्स है, क्या मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज है. आई हैव आइडेंटिफाइड द ऑल. अब जब मैंने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो बिकॉज ऑफ मैंने ये आइडेंटिफाई थ्रेड्स और ये सब किसके थ्रू करा? बिजनेस एनवायरनमेंट. नाउ विद द बिजनेस एनवायरनमेंट ये जितनी भी चीज मुझे पता चली, नाउ आई कैन हेल्प माई सेल्फ और माई बिजनेस और माई इंडस्ट्री फॉर द फ्यूचर प्लानिंग. अब मैं उन सारी चीजों को लेकर मैं खुद के लिए और अपने बिजनेस के लिए न्यू प्लानिंग्स कर सकता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है. How to set up new plans, how to work effectively on it, how to attract the customers, how to grow my business more faster. मैं ये सारी plannings कर सकता हूँ. And depending upon the planning, I will formulate my policy. जो पुरानी पॉलिसीज थी, अब उनमें क्या क्या चेंज करना है, किस तरीके से न्यू फॉर्मुलेशंस करना है फॉर माय प्रोडक्ट्स एंड माय एक्सटेंट. नाउ आई कैन प्लान इट इफेक्टिवली जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स. अगर बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं होता तो मुझे चीज़ों का पता नहीं चलता, और अगर मुझे चीज़ों का पता नहीं चलता, देन आई कैन नॉट प्लान माय बिजनेस एक्टिविटीज एंड आई कैन नॉट प्लान माय फ्यूचर पॉलिसी फॉर्मुलेशन. Clear? So it is the most important factor that business environment helps in planning and also the policy formulation. Clear? Now the last point in fifth, helps in improving performance. See, now अगर मैं business environment के सारे factors को लेकर चल रहा हूँ, if I am very much update and cared about my business environment factors, I have identified the threats, I have identified my warnings, I have identified my opportunity, I have taken the first mover advantages, I have cope up with the rapid changes and I have done my planning and policy formulation. अगर मैं इन सारे factors का total निकाल लूँ, then my business environment or my business setup will improve much more exponentially than any other businessman. My performance will increase, the performance of my business will increase, the efficiency of my business and my business partners and my business workers will increase. So the overall performance will increase, whether it is of mine, whether it is of my business, whether it is of my business partners or my business worker, सभी का performance increase होगा. So business environment helps to improve the performance. So this were the points that are important. This is the importance of business environment कि business environment क्यों important है. अगर business environment नहीं होगा, we cannot match with these points. अगर business environment important नहीं है तो हमारा business grow नहीं कर सकता, because we will all lag behind because of this all फैक्टर्स. हमें इन फैक्टर्स का पता ही नहीं चलेगा, मुझे थ्रेट पता ही नहीं चलेंगे, मुझे अपॉर्चुनिटीज पता ही नहीं चलेगी. सो द बिजनेस एनवायरनमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट लाइक टू सेट अप द बिजनेस. जितना इम्पोर्टेंट बिजनेस में काम करना है, उतना ही बाहर का ध्यान रखना भी है. अंदर हम लोग सेफ की कितनी भी सिक्योरिटी लगा दे, लेकिन अगर बाहर भी हमने सिक्योरिटी नहीं लगाई, देन इट इज ऑफ नो यूज. जितना इम्पोर्टेंट अंदर को सेफ रखना है, उतना इम्पोर्टेंट बाहर भी सेफ रखना जरूरी है. क्लियर? सो हमने आज नया चैप्टर स्टार्ट करा बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड वी हैव गॉन थ्रू दी टू फैक्टर्स और टू टॉपिक्स दैट आर
features of the business environment, total, specific, general, interrelated, dynamic, uncertain, complex and relative, and the importance of business environment, identify the opportunity and getting first mover advantages, identify threats and warning signals, coping with rapid changes, assisting the plan and policy formulation and improving performance. अब इसके आगे का topics we will start in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.